नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं जेके रात्रा आज आप सभी को इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम जूनियर एडेड टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में लाया हूं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ब्यूल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड। क्विक रिविजन कराऊंगा आप सभी को, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। द नेक्स्ट इज चौसर इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। देयर आर 29 pilgrims in Canterbury Tale. Pilgrims stay in Tabard Inn, whose host is Harry Bailey. Person's tale is the only tale in prose. आगे देखते हैं। Pious and Plowman is a book of William Langland. Lollard was the follower of Wycliffe. Wycliffe was the first author to translate the Bible English. Caxton started printing press in 1476. Thomas Watt was the first to use sonnet in English literature. The next is Chaucer was the first to use heroic couplet. Litotricia. Litotricia is a book by Thomas More. The next is Ralph Roister Doister is the first comedy written by Nicholas Udall. Garbodus or Ferox Porrex is the first tragedy in English literature by Thomas Sackville and Thomas Norton. The hero of Fairy Queen is Prince Arthur. The heroine of Fairy Queen is Glorious Elizabeth. Amorati is a collection of 88 sonnets of Spenser's. Now next is the Globe Theatre was built in 1599. Spenser wrote a elegy called Astrophel upon the death of Sidney. Sidney's apology for poetry is first known writing on criticism. Marlowe wrote only tragedies. Marlowe was the first to use two blank verse in English drama. Next question is, the preface of Fairy Queen was addressed to Walter Raleigh. Charles Lamb called Spenser poet's poet. Next is Spenserian stanza was first used in Fairy Queen. The next is the Fairy Queen was planned in 12 books, but it was written in 6 books only. Iliad and Odyssey were translated into English by Pope. Absalom and Achitophel deals with Pope's plot. Thomas Renus was a critic. Joseph Andrews of Fielding is a parody of Pamela of Samuel Richardson. 4 wheels of novel are Henry Fielding, Richardson, Sterne, and Smollett. Moll Flanders is a novel of Daniel Defoe. The line of poets of Johnson has life of 52 poets. Edward Gibbon wrote The Decline and Fall of Roman Empire.
Now next question is Political Justice was written by William Godwin. The Castle of Otranto is a Gothic novel by Horace Walpole. The hero of Picaro's novel is a rogue. अब आगे देखते हैं. आगे है 1798 lyrical ballad marked the beginning of romantic revival. The first volume of lyrical ballad had 23 poems. जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें 23 पोएम थे. Shelley was expelled from Oxford University after writing Necessity of Atheism. पीबी शेली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था जब उन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा था. तब नॉवेल्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट आर कॉल्ड वेवरली नॉवेल्स. इलिया इज ए पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम. चार्ल्स लैम का पेन नेम इलिया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटन बाय पीबी शेली. मैथ्यू अर्नोल्ड प्लेस्ड किड्स विथ शेक्सपियर. किड्स सेड माई नेम इज राइट ऑन वाटर. किड्स ने कहा था. ये जो कि किड्स के टॉम पर लिखा गया है. A thing of beauty is a joy forever is the opening line of John Keats. जॉन किट्स का इंडियम वॉक है और उसका एक फेमस लाइन है A thing of beauty is a joy forever. यह बहुत से एग्जामों में बार बार पूछता रहता है तो इसको ध्यान दीजिएगा. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज ए वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब. बायोग्राफिया लिटरेरिया इज ए बुक बाय कॉलरिज. बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज ने लिखा है. Now next question is D.G. Rossetti was the leader of pre-Raphaelite movement. pre-Raphaelite movement के जो लीडर थे D.G. Rossetti थे. Vanity Fair is called a novel without hero. Vanity Fair एक नॉवल है जिसमें कोई हीरो नहीं है. Wessex is a city of hardy novels. हार्डी के नावल के जो लिखते थे अपना रीजनल नावल वो रीजन था वेसेक्स. वहीं पर इसका सेटिंग ज़्यादा होता था. एडविन ड्रूड इज़ एन अनफिनिश्ड नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेन. चार्ल्स डिकेन का अनफिनिश्ड नॉवल है एडविन ड्रूड. इन मेमोरियम लमेंट द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हैलम. इन मेमोरियम लिखा था किसके याद में लिखा गया है? आर्थर हेनरी हैलम के याद में लिखा है. किसने लिखा है? टेंसन ने लिखा है. अर्नोल्ड ने लिखा है थर्सिस ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हॉक क्रॉप. द फेरी क्वीन इज ए नॉर्मल एलेगरी इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोटल. फेरी क्वीन एक मोरल एलेगरी है. मोरल एलेगरी इंस्पायर जो हुआ था अरिस्टोटल से. बेन जॉनसन सेड स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज. बेन जॉनसन ने कहा है कि स्पेंसर को कहा है कि स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज. स्पेंसर ने कोई भाषा नहीं लिखी है. सेफर्ड कैलेंडर हैज़ 12 o'clock, one for every month. सेफर्ड कैलेंडर लिखा गया है. स्पेंसर ने इसको लिखा है. उसको 12 o'clock में लिखा गया है. तो एक हर मंथ पर एक मंथ के लिए एक क्लॉग. बैकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे. हिज एसे रिटेन इन इंस्पायर्ड बाय मोंटेग ऑफ फ्रांस. द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसे. बेकन के एसे का जो पहला एडिशन था 1597 हैड 10 एसे. पहले
एसे में, जो कि कलेक्शन ऑफ एसे में 1597 में 10 एसे लिखा फ्रांसिस बेकन ने। बट लास्ट एडिशन, अंतिम एडिशन में उन्होंने लिखा 1625 में हैड 58 एसे। Jacobean age refer to the age of James I. After the death of Charles I, the head of England was Oliver Cromwell. Samson against the tragedy written by Milton. Areopagitica was written to defend freedom of press. Paradise Lost has 12 books. It has 10 books in 1667. आगे है The term metaphysical school of poets was first used for Donne के लिए यूज करता and his follower by Dr. Johnson. Milton became blind at an age of 44. मिल्टन 44 साल की उम्र में अंधे हो गए। पहली आँख उनकी 1650 में, दूसरी की 1652 में। Lycidas is a pastoral elegy written on the death of Edward King. Lycidas जो कि pastoral elegy है, इसको मिल्टन ने लिखा है। यह जो कि किसके मरने पर लिखा गया, किसके याद में, एडवर्ड किंग की। Milton was a big inspiration for Wordsworth. Milton married 3 times in his life. Essay on dramatic poesy was written by Dryden. और इट हैज़ 4 इंटरल्यूड था। essay on dramatic poesy में Dryden's All for Love is inspired by Antony and Cleopatra, the poets who took side for King Charles I were called Cavalier or Caroline poets. फिर आगे देखते हैं। Here is God's Plenty was written for Chaucer. Here is God's Plenty was written for Chaucer. किसने लिखा? ड्रेडन ने लिखा। Nahum Tate gave the happy ending to King Lear का happy ending दिया है Nahum Tate ने। एडगर की शादी करा देते हैं। Theatre was reopened in 1660 after the Commonwealth period. The Maillard is a satire of Dryden on Shaftesbury. Dryden is called the father of English criticism by Dr. Johnson. Dryden को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। आगे देखते हैं। 18th century was called the age of prose and age of reason किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। The proper study of mankind is mind किसने कहा है? अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है। आर्नोल्ड डिफाइंड पोएट्री को डिफाइन आर्नोल्ड किए हैं। क्या किए हैं? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहते हैं। वुमन कांट कमिट ए सिन इज कंक्लूजन ऑफ टेक्स ऑफ हार्डी। डेविड कॉपरफील्ड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ डिकेंस। डिकेंस क्रिएटेड फ्लैट कैरेक्टर्स। डिकेंस ज़्यादातर फ्लैट कैरेक्टर्स के नावल में दिखाते थे। डिकेंस अ टेल ऑफ 2 सिटीज रिफर करता है किसको? लंदन और पेरिस के रिफर करता है। गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, आर लाइन ऑफ पिप्पा passes by Browning. Rider to the Sea is a famous play by J.M. Singe. East is East and West is West is a line by Rudyard Kipling ने लिखा है। T.S. Eliot dedicated the Westland जो कि 1922 में लिखा गया to Ezra Pound. The Westland has 5 parts. Now next question is
Shanti, 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 or ending line of Westland. Religion of Blood is a phrase related to D.H. Lawrence. Sons and Lovers is an autobiographical novel of D.H. Lawrence. Man and Superman is a play by Zivisa. Chocolate Cream Hero appear in Arms and Man, written by Jibisa. Now next question is Mrs. Warren's Profession is a play based on prostitution by Shaw. He got the Nobel Prize 1925. Jibisa को नोबेल प्राइज मिला था 1925 में. Most of the novels of Conrad are set in sea. जोसेफ कॉनराड का जो कि नॉवल ज़्यादातर कहाँ पर सेट होता है, सेटिंग समुद्र में सेटिंग उसका ज़्यादा किए रहते हैं. हु इन्वेंटेड स्प्रंग रिदम? हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था स्प्रंग रिदम को. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स. T.S. Eliot called Hamlet an artistic failure. T.S. Eliot ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है. Eliot was royalist in politics, classicist in literature, and Anglo-Catholic in religion. Now next question is 7 Types of Ambiguity is book of William Empson. Bloomsbury Group was founded by Virginia Woolf. George Orwell's 1984 is a prolific novel. Hamartia is a tragic flaw according to Aristotle. Ottava rima is 8-line stanza in iambic pentameter. Spenserian stanza consists 9 lines with 2 quatrains in iambic pentameter and Alexandrine. Metaphor is a comparison between things having latest one thing is common. Next, pun is a play of word. For example, is life worth living? It depends on liver. Next, when an adjective phrase is used to give a sense of noun, is called transfer epithet. He had a sleepless night. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन. रिपीटेशन ऑफ similar vowel sound is assonance, while repetition of similar consonant sound is called consonance. Stopple, antistrophe, and epode are component of a pindaric ode. Pindaric ode के component हैं strophe, antistrophe, and epode. Chaucer was first to use heroic couplet in The Legend of Good Women में. जोफ्री चौसर ने हीरोइक कपलेट सबसे पहले अपने वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज किया था. अलेक्जेंडर बार्कले इन्वेंट इक्लॉग. पस्टोरल पोएम को कहते हैं इक्लॉग. अलेक्जेंडर बार्कले ने इन्वेंट किया था इक्लॉग को, इसको पस्टोरल पोएम भी कहते हैं. द बर्थ ऑफ इंग्लिश ड्रामा टुक प्लेस रिलीजियस लिटरेचर ऑफ चर्च. Next is Thomas Watt was the first to employ sonnet, treasure rima, and ottava rima in English. Blank verse was first used by all of Surrey. The originator of picaresque novel is Thomas Nash. Originator थे picaresque novel से कौन? Thomas Nash थे. King Alfred is called the founder of English prose. King Alfred को founder of English prose कहा जाता है.
Dr. Johnson is the father of biographical criticism. Longinus is called the first romantic critic. लॉन्जाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा जाता है. अरिस्टोटल इज फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक. अरिस्टोटल को फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक माना जाता है. डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड पोएट्री as a material composition. Carlyle defined poetry as a musical thought. Poetry is antithesis of science as it gives pleasure not true or word of Coleridge का है. Edgar Allan Poe defined poetry as rhythmic creation of beauty. Edgar Allan Poe ने कहा. Pathetic fallacy is a term of Ruskin. Epistolary novel is a novel in form of letter. Epistolary novel जो होता है कि लेटर का फॉर्म होता है. लेटर का मतलब लिखा, लेटर से लिखा रहता है. Greek tragedy was performed before Dionysus of Apollo's altar. Chorus was a part of Greek drama. Soliloquies are pastoral psychological revelation of characters. Crisis is a normal outcome of what has happened before. Irony is basically three types: structural, situational, and verbal. Aristophanes was the master of Greek comedy. The three great Greek tragedies are Sophocles' tragedian, Sophocles, Achilles, and Euripides. Seneca was the master of revenge tragedy. Dionysus was the god of fertility. Tragic actors were high-hatted Jews known as buskins. In Greek tragedies, character is destiny. Bacon is inventor of deductive logic. Wordsworth is called high-priced of nature. Wordsworth is called high-priced of nature. Wordsworth को कहा जाता है. The word essay means an attempt होता है. Imaginative character were first used in essay of Addison and Steele. Bard of Avon शेक्सपियर को कहा जाता है. Bard of Twickenham अलेक्जेंडर पोप को कहा जाता है. फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी अकलस को कहा जाता है. फादर ऑफ कॉमेडी एरिस्टोफेनेस को कहा जाता है. फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी एडगर एलन पो को कहा जाता है. और ऑस्कर वाइल्ड वाज सपोर्टेड फॉर आर्ट सेक. ऑस्कर वाइल्ड जो कि आर्ट फॉर आर्ट सेक को सपोर्ट करते थे. Now next question is moral choice is everything in novels of Dickens. Wordsworth, Coleridge, Southey are called lake poet. Pickwick Papers is a novel of Dickens. Jane Eyre is a work of Charlotte Bronte. The Pilgrim's Progress is a novel of John Bunyan. Old Man and the Sea is a novel of Ernest Hemingway. The Mill on the Floss is a novel of George Eliot. Blake was famous for his mysticism. He wrote The Marriage of Heaven and Hell. Sensuousness is the chief feature of Keats' poetry. Pride and Prejudice is a novel of Jane Austen. It
इट्स हीरोइन इज इमा। प्राइड एंड प्रेजुडिस में हीरोइन कौन है? इमा है। हाइपेरियन इज एपिक ऑफ किड्स। किड्स ने एक एपिक लिखा जिसका नाम था हाइपेरियन। मिस्टर डलवे इज ए फेमस वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। लेडी चैटरलेस लवर was banned for its sexual freedom. Lucy poem resemble character of Dorothy. Fate plays an important role in Hardy's novel. Preface to Shakespeare was written by Dr. Johnson. Preface to Shakespeare किसने लिखा? डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। Samuel Beckett belonged to theatre of absurd. His famous play is Waiting for Godot. Hardy is a pessimist. Hardy pessimist है। Tradition and Individual Talent is a critical essay of T.S. Eliot. Tradition and Individual Talent T.S. Eliot ने critical वर्क है। Alliteration is a repetition of sounds. Twelfth is the only play of Shakespeare that follow classical trend of three unity. Unity of time, unity of place and unity of action को शेक्सपियर का प्ले 12th नाइट ने फॉलो किया है, थ्री यूनिटी को। Hellenism is love for Greek culture and art in kids' poetry. Beauty is truth and truth is beauty is a famous line for ode to Grecian ornament. दोस्तों ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ode to the ग्रेसियन अर्न का है। इसकी लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। मेटाफिजिकल पोएट इज ए क्रिटिकल एसे बाय टी.एस. एलियट। Salient to Byzantium and Second Coming are two famous poems of W.B. Yeats. Adam Bede is a novel of George Eliot. His pen name is Mary Ann Ewans. Next question is The Lothrat's Easter is a poem of Tennyson. Wuthering Heights is a famous novel by Emily Bronte. Vers libre is the French name of free verse. Free verse का vers libre French name है. Aspect of the novel is a book of E.M. Forster. William Faulkner got the Nobel Prize in 1949. 1949 में विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था। द रेनबो इज a famous novel by D.H. Lawrence. Shelley was basically a lyric poet. P.B. Shelley basically lyric poet थे। The Wheel of Fire is a book by G. Wilson Knight. Novella is the Italian word for novel. Next question is Poetic justice is a word of Samuel Johnson. Galsworthy took his law degree in 1889. गाल्सवर्दी ने अपनी लॉ की डिग्री हासिल कब? 1889 में। गाल्सवर्दी मैरिड वाइफ ऑफ हिज कजन। जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी कजन की वाइफ से शादी किया। उसका आदा पियर्सन नेमेसिस नाम था। गाल्सवर्दी बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन 1921। जॉन गाल्सवर्दी को पेन का प्रेसिडेंट बनाया गया 1921 में। बताते हैं आपको पेन क्या होता है। पेन है एक वर्ड जिसका अर्थ होता है, पेन मीन्स पोएट होता है, पोएट हो जाएगा। ई मीन्स एसेइस्ट होगा, नॉवेल्स होगा, नॉवेलिस्ट हो जाएगा। उसी का आदेश बनाया था, जॉन गाल्सवर्दी को बनाया गया था प्रेसिडेंट। अगला है
John Goldsworthy got the Nobel Prize in 1932 and donated the prize money for pen. जॉन गल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में, लेकिन उन्होंने अपना जो कि प्राइज मनी पेन को डोनेट कर दिया। Now next question is Goldsworthy got ऑर्डर ऑफ मेरिट 1934। जॉन गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी मिला था 1934 में, नोबेल प्राइज़ 1932 में। ठीक, 1929 में मिलता है उसको 2 साल बाद, 3 साल बाद 1929, 31, 32 में मिल जाता उनको नोबेल प्राइज़। प्लॉट एंड स्टोरी वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गॉल्सवर्दी। प्लॉट एंड स्टोरी कोई इम्पोर्टेंट नहीं था जॉन गॉल्सवर्दी के लिए। जॉन गॉल्सवर्दी हैड ए गुड फ्रेंडशिप विथ जोसेफ कनराड। जॉन गॉल्सवर्दी के बेस्ट फ्रेंड थे जोसेफ कनराड। हिज फर्स्ट वॉल्यूम कॉल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपेयर इन अंडर द निकनेम ऑफ जॉन सिंजन। जॉन गॉल्सवर्दी के जो कि फर्स्ट वॉल्यूम था फ्रॉम फोर विंड्स, जो कि जॉन सिंजन के नाम से पब्लिश हुआ था। जोसेलिन was the first published novel of Galsworthy. Galsworthy said literature has its own reward. Silver Box is a play of John Galsworthy. Types of conflict between the capital and labor. David Roberts is the leader of laborer in type. John Builder is a character of Family Man में कहा है। जॉन बर्थविक इज ए करेक्टर ऑफ जॉन सिल्वर बॉक्स में कहा है। देयर कैन बी ओनली वन मास्टर। देयर कैन बी ओनली वन मास्टर आर द वर्ड ऑफ एंटोनी टाइप में कहता है। फोरसाइट सागा इज ए फेमस ट्रायोलॉजी ऑफ गॉल्सवर्दी। मिल्टन वाज born at Bread Street, London. He was called Lady Christ in school. जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था स्कूल में। He received his education at St. Paul School and Cambridge. In 1692 he got his MA. जॉन मिल्टन ने 1692 में MA की डिग्री प्राप्त की। मोस्ट ऑफ कॉमर्स वाज रिटेन 1634 and was performed लॉर्डल कास्टल। जॉन मिल्टन ने मास्क ऑफ कॉमर्स लिखा था 1634 में, उसको परफॉर्म किया उधर लॉर्डल कास्टल में परफॉर्म किया गया था। लिसिडस 1638 में लिखा गया ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग की याद में। इन 1643 में मिल्टन मैरिड मैरी पॉवेल। इन 1644 एरोपैजिटिका was written on freedom of press. In 1649 Middleton was elected as a foreign secretary to Commonwealth. In 1649 he wrote a tenor of king and manifested to support murder of King Charles I. In 1657 Milton marries Catherine Woodcock. And 1633 मिल्टन मैरिज एलिजाबेथ मंसूर। जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की। पहली शादी जॉन मिल्टन ने 3 शादी की। पहली शादी 1643 में किया, दूसरा 1657 में किया, तीसरा शादी किया 1663 में, 42, 57, 63 में।
पहली पत्नी का नाम था मैरी पावल, मैरी पावेल। दूसरे का नाम था कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक। तीसरे का नाम इलिजाबेथ मिंसुल, तो जॉन मिल्टन की 3 पत्नियां थी, इनका सबका नाम और कब कब शादियाँ तीनों हुई याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, तीनों पत्नियों का नाम। इसका ट्रिक है PWM, PWM याद रखेंगे, PWD या PWM। PWM याद रखेंगे। पी से हो जाएगा मैरी पॉवेल हो जाएगा, W से कैथरीन वुडकॉक हो जाएगा और M से होगा एलिजाबेथ मंसूल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसिडस 1638 में लिखा गया मान्यता वेडवर किंग। ये तो मैं बता चुका हूँ, आगे देखते हैं। He wrote Paradise Lost between 1658 to 1665. Got it published in 10 books. In 1674 edition, it was expanded and 12 books. जॉन मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट 1658 और 1665 के बीच में उन्होंने लिखा था और 10 बुक में उसको लिखा गया था। 1674 में पब्लिश हुआ, बाद में उसको 12 बुक करने में लिखा। ही सोल्ड कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सैमुअल सिमन को उन्होंने 5 पाउंड में बेच दिया था पैराडाइज लॉस्ट को। मिल्टन रोड पैराडाइज रीगेन ऑन द सजेशन ऑफ थॉमस एटवुड को। It was published in 1671 with Samson agonist. Milton died in 1674 due to gout. मिल्टन की मृत्यु हो जाती है 1674 में गॉट के कारण। गॉट एक बीमारी होती है। The theme of Paradise Lost is to justify ways to God to man, justify the way of God to man। ये पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम है। मिल्टन इन्वोक्स म्यूज 3 times इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन जो कि पैराडाइज लॉस्ट में म्यूज को 3 बार इन्वाइट करते हैं, इन्वोक करते हैं। मुल्सिपर इज द मेन आर्किटेक्चर ऑफ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम पिशाच घर जो होता है उसका आर्किटेक्चर मुल्सिपर रहता है पैराडाइज लॉस्ट में। माइकल लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज के बाहर जो कि माइकल एडम और ईव को लीड करता है। मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जिल एंड होमर। मिल्टन जो कि वर्जिल और होमर से इन्फ्लुएंस थे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज डिसओबीडियंस ऑफ मैन था। बेल्जेबुल इज द सेकंड टू सैटर्न इन पावर। यूरेनिया इज हेवनली म्यूज ऑफ मिल्टन। अगला है स्पेंसर वाज मास्टर ऑफ मिल्टन। मिल्टन का मास्टर कौन था? स्पेंसर। मिल्टन कट्स अस ऑल आउट एन एंशिएंट टू सेड बाय ड्रेडन। ड्रेडन ने कहा है। आगे देखते हैं। Allegro and Penseroso show boys melancholy nature respectively. The idea of masque was borrowed from Italy. Paradise Lost is written in blank verse. Paradise Regained is the story of Satan temptation of Christ. In book first, Satan is compared to Leviathan.
1632 and 1638 is known as Horton period in Milton career. 1632 से 1638 को हॉटन पीरियड मिल्टन का कहलाता है. Mallows is besmeared with human blood. Belial come last of fallen angel. Milton's style is called grand style. मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है. Freedom of will is the chief doctrine in Paradise Lost. Samuel Johnson said Milton write no language. सैमुअल जॉनसन ने कहा मिल्टन कि मिल्टन नो कोई लैंग्वेज नहीं था. मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. विलियम ब्लैक ने कहा. वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एट कॉकरमाउथ कम्बरलैंड. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में, कम्बरलैंड इंग्लैंड में. और विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 को. और उनकी माता की मृत्यु 1778 में. He had an affair with Annie Boleyn, a French girl, and also had a daughter Caroline from her. विलियम वर्ड्सवर्थ की एक प्रेमिका रहती है, उसका नाम था एनिटी बोलेन, जो कि एक फ्रेंच गर्ल रहती है. और उसकी एक लड़की भी रहती है जिसका नाम रहता है कैरोलिन, जो कि वर्ड्सवर्थ और कैलोरीन की बेटी रहती है. कैलोरीन नाम रहता है उनकी लड़की का. एंड बोलेनी और वर्ड्सवर्थ की लड़की थी. डिस्क्रिप्टिव स्केचेस बाय पब्लिश्ड इन 1793. डिस्क्रिप्टिव स्केच विलियम वर्ड्सवर्थ का पब्लिश हुआ था 1793 में. ही मैरिड मैरी हचिसन 1802 में. वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी 1802 में मैरी हचिसन के साथ. द पोएम लंदन 1802 इज एड्रेस टू मिल्टन को एड्रेस करता है. अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वाज रिटन अबाउट लंदन व्हेन ही वाज गोइंग टू फ्रांस विथ डोरोथी. सब रहते हैं. वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट 1843. वर्ड्सवर्थ जो कि पोएट लॉरिएट हुए थे 1843 में. वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास अवे इन शिपरेक. Stern daughter of the voice of God occur in Ode to Duty में. Name of the son of Michael is Luke. लूक नाम रहता है लूका. लूक माइकल के लड़के का. पोएम माइकल लिखा जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा. An alternative title of Ruth is Influence of Nature. The subtitle of Prelude is Growth of Poet's Mind. The Prelude has 14 books. Michael's cottage is called Evening Star. But we are passed by heavy law. Each line of 14. Oh, there is a blessing in this gentle breeze is the opening line of Prelude. This sea that bare her bosom to the moon is a line from the poem World is Too Much. The still sad music of empty is a line from the poem Titan Abbott. Arnold called Wordsworth one of the chief glory of English poetry. Arnold ने किसी का वर्ड्सवर्थ को. ब्राउनिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ लॉस्ट लीडर. ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा. सेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ को कहा था एक मोरल इनक. सेली ने वर्ड्सवर्थ को एक मोरल इनक कहा है. वर्ड्सवर्थ रोट हिज बेस्ट पोएम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलरिज. William J. Long said that humor is not present in Wordsworth's work.
The only love sonnet of Wordsworth is Why Are Thou Silent? वर्ड्सवर्थ का एक ही लव सोनेट लिखा, वाई आर दाउ साइलेंट, लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ में। आगे देखते हैं। द प्रिल्यूड इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ सेड अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इज predominant in Wordsworth. The solitary reaper was singing in Gaelic. Titan Away is a dramatic lyric. Shakespeare was born on 23rd April 1564 at Stratford-upon-Avon of Warwickshire. He was baptized on 26 April 1564. He attended Stratford Grammar School. In 1582, he married Anne Hathaway. Shakespeare started his literary career in 1592. He was a shareholder of Globe and the Blackfriars. In 1613 में a fire broke out in the Globe Theatre when the play Henry VIII was being performed. जब हेनरी VIII परफॉर्म हो रहा था शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले, वो ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है 1613 में। आउट ऑफ 154 सोनेट, 150 सोनेट, 154 सोनेट ऑफ शेक्सपियर, 126 sonnet addressed to Earl of Southampton, while 20 are sonnet addressed to Dark Lady. His sonnet were published in 1605. Comedy of Errors is the shortest play of Shakespeare, 1770 lines की, while Hamlet is the biggest one. Ben Jonson said Shakespeare knew small Latin and less Greek. शेक्सपियर कहा जाता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन का। जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेत्रा, कैरियोलैनस आर रोमन प्ले। शेक्सपियर का रोमन प्ले कौन है? जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेत्रा, कोरियोलैनस। पक, ओबरन, हिप्पोलिटा, टाइटेनिया, ओलिसेंडर, हेलेना, हर्मिया आर द कैरेक्टर मीट समर नाइट ड्रीम। पोम्पी, ऑक्टेविया, Dolabella, Ventidas, Eros, and the character of Antony Cleopatra में। Octavia is the sister of Caesar. Antony and Cleopatra was written in 1607. Cleopatra was the queen of Egypt. The first folio of Shakespeare play came in 1623. Rosalind, Orlando, Oliver, Duke Frederick, Phoebe are the character of As You Like It. What a piece of work is a man is the line of Hamlet. To be or not to be, that is the question of the line Hamlet में लिखा गया। Frailty dynamics woman is the line of Hamlet. Procrastination is a tragic flaw of Hamlet. If music be the food of love, play on this line said by the Duke of Orsino in Twelfth Night. Fair women are as roses, a line said by Duke of Orsino in Twelfth Night. False praise must hide what false heart must know are word in Macbeth. Neither a borrower nor a lender be, a line by Polonius in Hamlet. Generally, Shakespeare divides his play in 5 acts. The Tempest was the last finished play by Shakespeare. John Ruskin said कहते हैं, Shakespeare has only heroes, not heroine.
जहाँ रचना ने कहा है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, शेक्सपियर हैज़ नो हीरो, ओनली हीरोइन। जॉन रस्किन ने कहा द कलर ऑफ ग्लोब थिएटर फ्लैग वाज ब्लैक ड्यूरिंग ट्रेजेडी वाइल एंडिंग वाइट ड्यूरिंग कॉमेडी। ग्लोब थिएटर का फ्लैग काला रहता है ड्यूरिंग ट्रेजेडी के समय, वाइट रहता है कॉमेडी के समय। जब ग्लोब थिएटर में परफॉर्मेंस होता था शेक्सपियर का प्ले, तो वाइट फ्लैग लगा दिया जाता था, समझ लीजिए कि ट्रेजेडी चल रहा है, ट्रेजेडी परफॉर्म हो रहा है ग्लोब थिएटर में। अगर वहीं वाइट फ्लैग लगा दिया जाता तो समझ लीजिए कॉमेडी चल रहा है। आगे मैं आप सभी को बताऊंगा फेमस ऑथर्स, पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड देयर वर्क के बारे में। तो आइए देखते हैं। वर्क्स दिया है और ऑथर्स। APJ अबुल कलाम ने लिखा है विंग्स ऑफ फायर और इग्निटेड माइंड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा गीतांजलि और माई हेवन। खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने लिखा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद थ्रू। RK नारायण ने लिखा है गाइड। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी ने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन। जुम्पल नहरी ने लिखा है इंटरप्रीटर ऑफ मालदीव्स। विक्रम सेठ ने लिखा सूटेबल बॉय। विक्रम सेठ ने लिखा सूटेबल बॉय। अरुंधति रॉय ने लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मुल्क राज आनंद ने लिखा है कूली। शिव खेरा ने लिखा है यू कैन विन। गिरीश कर्नाड ने लिखा है वदन। कुलदीप नारायण ने लिखा है बिटवीन द लाइन इंडिया आफ्टर नेहरू। जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामायनी। धर्मवीर भारती ने लिखा है गुनाहों का देवता। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गबन, गोदान, कफन। यह है नीरज सी चौधरी ने लिखा पैसे टू इंग्लैंड। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी जी ने लिखा माई, इंदिरा गांधी ने लिखा माई ट्रूथ। अनीता देसाई ने लिखा इन कस्टडी। कमला दास ने लिखा है समर इन कलकत्ता। विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। सरोजनी नायडू ने लिखा है पलंक्वस वेरस। स्वामी विवेकानंद ने लिखा द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इधर दिया गया है ड्रामा है और ड्रामेटिस्ट हैं। तो देखते हैं थॉमस किड्स ने कौन सा ड्रामा लिखा है। स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस क्यूड ने लिखा है। क्रिस्टोफर मार्ले ने लिखा है डॉक्टर फॉस्टर एडवर्ड सेकेंड द जीव ऑफ माल्टा। क्रिस्टोफर मार्ले ने लिखा है रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ट्वेल्थ नाइट, टाइमिंग ऑफ श्रू, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, लव नेवर लॉस्ट, हेनरी V, द विंटर्स टेल, रिचर्ड II, रिचर्ड III, मेजर फॉर मेजर, मच एडो अबाउट नथिंग, मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर ने लिखा है। अगला विलियम कॉन्ग्रे का द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रे ने लिखा है। लव फॉर लव विलियम कॉन्ग्रे ने लिखा है। वॉल्पोन बेन जॉनसन ने लिखा है। एल्केमिस्ट द एल्केमिस्ट बेन जॉनसन ने लिखा है। आगे है थॉमस मिडल्टन का द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। थॉमस मिडल्टन ने लिखा वुमेन बी अवेयर वुमेन। थॉमस मिडल्टन ने लिखा है। अगला है जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी। जॉन वेबस्टर ने लिखा है।
जीवी शाह ने लिखा है मिसेस वारेन प्रोफेशन, पिग्मलियन, आर्म्स एंड मैन, जीवी शाह ने लिखा है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। और देखते हैं आगे है लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन लिखते हैं द पासिंग ऑफ आर्थर। वॉल्ट विटमैन लिखते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। मैथ्यू अर्नाल्ड का है डावर बीच। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है स्टॉकिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग। विलियम ब्लैक ने लिखा है लंदन, द लैम्ब, द सिक रोज। द नेक्स्ट इज सैमुअल टेलर कोलरिज has written by Frost at Midnight। जॉन किट्स ने लिखा है ओड ऑन अग्रेशन ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ओड टू द नाइटिंगेल। जॉन किट्स ने लिखा है। पीबी शिली ने लिखा ओड टू द वेस्ट विंड। और ओजिमेंडियाज टी.एस. एलियट ने लिखा है द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड रुप्रॉक। W.B. Yeats ने लिखा है द वाइल्ड स्वान एट कोर, सलेम टू बेंजेंटियम, लेडा एंड द स्वान अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन। तो ये था वन लाइनर क्वेश्चन जूनियर एडेड और बाकी सभी एग्जामों के लिए जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब को मैंने बताया। आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।